Assalamu alaikum. My name is Dr. Syed Hassan Adil, and my co-host is Israr Ali Saab. Uh, as you are aware that we are going to discuss about data science today. We will try to cover different aspects of data science, including the job opportunities and different certification, different learning opportunities, and many things relevant to data science. So I hope that other students or other attendees primarily are actually joining. So first of all, I would like to welcome you all, because if you are attending this particular session, then this means you are somehow motivated towards data science, and probably you want to pursue your career, or you want to move from your current career to data science. You might already aware that data science is in very high demand, and you are already know about it that currently we are facing the pandemic, which is about COVID-19. And believe me, there are lots of opportunity for the data scientists to explore about the data which we are gathering from different patients, and by doing different type of testing to identify. Primarily, of course, you are very well aware that PCR is the basically recommended technique through which we can detect that a current patient uh, is actually facing the virus of caused by the COVID-19. So in general, there are lots of opportunities for data scientists. I was just referring towards one of the example, which is about medical domain. But there are plenty of domains, or you can say that in almost every domain, every field, whether it's a business domain, I am talking in a higher level, in engineering domain, or computer science, or already I am talking about medical. So you name it, and you find it that there are lots of opportunities related to data science. So what we are actually facing, that there are basically very less number of resources available in the domain of data science. I'm just talking about, I'm not only talking about Pakistan, but if you check the global data, then you can able to identify that there's a lot of the demand of the data scientists, but less resources are actually available. So you might already aware that a lot of the many universities, many international universities are currently offering different program relevant to, or you can say at the bachelor level, master's level, and of course at the PhD level, if you are want to pursue your whole career towards the research, maybe primarily. So there are universities all across the globe that are offering degrees in data science. But still, the number of resources required in the domain of data science are quite high in comparison with the resources produced by universities, or even using different other mechanism to train the resources, like virtual platform, or like platform like Coursera, or might be edX, or might be by some other domain, some other basically virtual learning platforms. There are various boot camps available. There are basically local groups are available through which you can learn about data science. But again, what our experience is basically the number of resources in Pakistan are quite low. People are not very well aware about what is actually data science.
You might be like, oh, we are very well aware about data science. Why you are talking that we don't know about data science? So I want to refer that many people are actually confused about what is the difference between BI, or you can call it business intelligence, machine learning, data mining, and data science. If you ever gone through one of the book from any of these area or sub area or domain, then you might be like, oh, a decision tree is basically in data mining. Decision tree is also available in data science or machine learning or even in business intelligence. So if more or less the content, or you can just call it algorithms, are same in all these basically fields, then what is the difference between data science? Is it a new fancy word? Is it a new buzzword or something else? Okay, so here in today's session or in today's webinar, we will try our best to explain you about what is actually data science. What are the opportunities available in the domain of data science locally as well as globally? And what are the basically salary packages are available? What is basically the trend? Okay, and what learning or training opportunities are available through which we can learn, through which we can polish our skills relevant to data science. So with this brief introduction, I would like to request Israr Ali to start with this presentation to explain you about this concept. Later on, I will also try to explain things like what is actually Kaggle, what Kaggle platform provides to you, and in the end, we will be talking about what should be the overall learning path. If you want to continue, if you want to pursue your career as a data scientist, then what should be the learning path which you need to follow in order to become a skilled data scientist, followed by definitely the Q&A session in which you are free to ask any question. Last thing, if you still want to ask any question right now, then you can post on the chat. So in the meanwhile, while Mr. Israr Ali will be presenting this presentation, I will try my best to answer all the questions on the chat platform. The chat feature is actually available on the Zoom as well, so you can use chat to ask any question relevant to data science, and I will try my best to answer. With this thing, I will like to request Israr Ali Saab to please continue with the today's presentation. Israr Ali Saab, please continue. ओके सर, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आई होप के एवरीवन इज लिसनिंग। और थोड़ी सी बात हम इंग्लिश और उर्दू कंबाइन करेंगे क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहीं के स्टूडेंट्स ही हैं। तो फिर भी अगर कोई बात अगर समझ में ना आए तो आप लोग प्लीज़ चैट पर लिख दीजिएगा, सर एक्सप्लेन कर देंगे। आज का जो हमारा बेसिकली डिस्कस करने का जो रीज़न है वो ये है कि आप लोगों को ज़रा ये क्लियर कर दिया जाए कि ये डेटा साइंस क्या चीज़ है, क्या फील्ड है। इतना जो बूम आया हुआ है, हर शख्स डेटा साइंस की बात कर रहा है, हर शख्स ये बात कर रहा है कि मुझे डेटा साइंस की जॉब करनी है या मुझे क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं जो कि डेटा साइंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वो आज इंशाल्लाह उसके ऊपर हम बात करेंगे। वैसे भी आपको पता है कि जो हमारा वेबिनार का जो टॉपिक है वो है बेसिकली हाउ टू बिल्ड योर कैरियर्स एज डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंस को समझना है और ये भी समझना है साथ में कि आपको अगर इस साइट पे जाना है, कैरियर एज अ डेटा साइंटिस्ट डेवलप करना है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो ये जो आज हमारा वेबिनार हो रहा है, इस वेबिनार के जो कंडक्ट कर रहे हैं हम दो
जैसे कि आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि सर हसन आदिल भी इसमें हमारे साथ शामिल हैं और मैं भी आपके साथ इसमें शामिल हूँ। तो हम दोनों मिलकर ये वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं। इसका ज़्यादातर पार्ट तो सर ही कंडक्ट करवाएंगे और कुछ हिस्सा इसका मैं कवर करवा रहा हूँ। तो ज़्यादातर लोग तो हमें जानते ही होंगे, जो लोग हमें नहीं जानते तो उनके लिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हम लोग इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी मेंबर्स हैं। और अगर आप लोग फर्दर बाद में हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप चैट पे लिख दीजिएगा, हम अपना कांटेक्ट हाउ टू कांटेक्ट अस का आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे। तो जो चीज़ें आज कवर करने की कोशिश करेंगे वेबिनार के अंदर, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डेटा साइंस। डेटा साइंस आखिर है क्या, इसमें क्या किया जाता है। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे कि इसकी इतनी डिमांड क्यों है और कितनी डिमांड है इसकी। फिर इसके बाद हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान में डेटा साइंस का क्या स्कोप है, क्या काम हो रहा है डेटा साइंस से रिलेटेड। फिर इसके अलावा कैगल के ऊपर बात होगी, ये क्या चीज़ है, सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल के साथ। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनली डेटा साइंस के क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद एट द एंड हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर एज अ डेटा साइंटिस्ट आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, वो क्या स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं फॉर अ डेटा साइंटिस्ट टू कंटिन्यू एंड टू बी सक्सेसफुल इन दिस फील्ड। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है व्हाट इज डेटा साइंस। तो डेटा साइंस जनरल क्वेश्चन या आप लोगों से करने का मकसद ये है कि थोड़ा बहुत अगर आपके जहन में भी कोई कॉन्सेप्ट है तो वो आपको जहन में आए और फिर उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो डेटा साइंस क्या है, बेसिकली आपको यहाँ पर एक डायग्राम नजर आ रही है और इस डायग्राम के अंदर आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। यहाँ पे यानी अगर आप लेफ्ट टॉप पर आए तो आपको एक वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है, डेटा प्रिपरेशन। उसके अंदर दो आपको सब हेडिंग्स नजर आ रही हैं, डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। फिर थोड़ा सा आगे जाएं तो आपको यहाँ पे EDA यानी कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का वर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। फिर थोड़ा सा और आप यहाँ पे राइट साइड पे आए, राइट टॉप पर, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है डेटा मॉडलिंग। फिर मजीद नीचे आप आए तो यहाँ राइट साइड पे लिखा हुआ है विजुअलाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। फिर नीचे आए तो लिखा हुआ है डिप्लॉय। और मजीद यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स और नजर आ रही हैं। तो ये सब चीजें डेटा साइंस का पार्ट है। ये आपको एक सर्किल सा नजर आ रहा है जो कि कंटिन्यू चलता चला जा रहा है और ये सारी चीजें डेटा साइंस का पार्ट है। तो अब इसको थोड़ा सा और आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करते हैं। देखें, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। डेटा साइंस क्या है, बेसिकली इस वक्त दुनिया के अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन के पास बेतहाशा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मौजूद है। यानी अगर हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, फेसबुक है, गूगल है, अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेसेस का नाम लिया जा सकता है जो कि आज सक्सेसफुल है। अगर हम पाकिस्तान में मौजूद किसी यूनिवर्सिटी की भी बात करें तो उनके पास भी बहुत बेतहाशा डेटा मौजूद है। तो अब ये जो डेटा हमारे पास सारा मौजूद है, इस डेटा की बेसिस पे क्या क्या कैलकुलेशन की जा सकती हैं, क्या क्या एनालिसिस की जा सकती हैं, क्या क्या रिपोर्ट्स जनरेट की जा सकती हैं, इस डेटा से किस तरीके से फायदा उठाया जा सकता है, उसके लिए हमें कंप्यूटिंग पावर की जरूरत है। उसको हम मैनुअली ये चीजें परफॉर्म नहीं कर सकते। तो डेटा साइंस इसमें हमारी हेल्प करती है। यानी ये जो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मौजूद है, इस डेटा को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकें, इससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें जो कि हमारे लिए यूजफुल हो। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं और वो एग्जाम्पल ये है कि सपोज आप कहीं सड़क पर मौजूद हैं और आपको किसी लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पे जाना है, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो उसके लिए जो बेस्ट आपके पास अवेलेबल रिसोर्स इस वक्त मौजूद है कि आप उबर या करीम में से किसी को बुलवा लें और उसके लिए आपके पास मोबाइल ऐप इंस्टॉल होगी। आप अपनी मोबाइल ऐप ओपन करेंगे और उस मोबाइल ऐप के थ्रू आप अपनी जो भी डेस्टिनेशन है वो उसके अंदर लिखकर
ओके करेंगे, नतीजे में थोड़ी देर में आपके पास एक कार आ जाएगी और उस कार में बैठकर आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, डेली यूज टू हम इसके साथ हो गए। तो अब ये जो प्रोसेस हुआ है इसमें जो यूजर है उसके लिए सिंपल एक मोबाइल ऐप है जिसको उसने यूज किया है। जो ड्राइवर है गाड़ी का उसके पास भी एक मोबाइल ऐप है जिसने उसको यूज किया है। वही ऐप इस ड्राइवर को यहाँ पर लेकर आई है और उसी ऐप के थ्रू ये जो यूजर है वो भी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है। लेकिन एज अ कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल, एज अ डेटा साइंटिस्ट, जब हम इसके ऊपर गौर करेंगे तो हमें अंदाजा ये होगा कि ये जो काम हुआ है इसके बैकग्राउंड के ऊपर बेसिकली बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, बेतहाशा डेटा इन्वॉल्व है। यानी इसमें डेटा इन्वॉल्व है उस यूजर का जो कहीं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना चाह रहा है। यहाँ पर इन्वॉल्व है बहुत सारे डेटा, ड्राइवर्स का डेटा मौजूद है, यहाँ पर लोकेशन का डेटा मौजूद है, यहाँ पर वेदर का डेटा मौजूद है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती हैं जो कि इसके अंदर मौजूद है। और फिर वो सारी डेटा को ये ऐप हमारी यूज कर रही है और उसके नतीजे में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम उबर की बात करें या करीम की बात करें तो उनके लिए ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ये भी पता है कि जब आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा रहे होते हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ जो निकलता है, अगर आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इस तरह के और कोर्सेज करे हो तो उनको अंदाजा होगा कि जो सर्चिंग एल्गोरिथम्स होते हैं ये किस तरीके से सर्च करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं और क्या क्या डेटा रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, लेकिन इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि पीछे कंप्यूटिंग पावर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, साथ ही साथ जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी फेसबुक की अगर आज हम बात करें तो फेसबुक की असल पावर उसके नंबर ऑफ यूजर्स हैं। अगर आज तमाम लोग फेसबुक को यूज करना छोड़ दें तो फेसबुक बेकार हो जाएगी। ट्विटर की असल पावर नंबर ऑफ ट्विटर यूजर्स हैं। अगर ट्विटर को लोग यूज करना छोड़ दें तो उसके पास डेटा आना खत्म हो जाएगा, वो एक बेकार ऐप हो जाएगी। इंस्टाग्राम के ऊपर जितने यूजर हैं वो उतनी ही ज्यादा सक्सेसफुल एप्लीकेशन है। तो जितना ज्यादा डेटा होता चला जाएगा इनको फायदा होगा, और यही बेसिकली चीज है। तो अब इसमें एक और बात को ही समझें कि जो एग्जांपल अभी हमने उबर की डिस्कस करी है तो यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है। देखें, एक काम तो ये हो रहा है कि जो ऐप है वो ये कैलकुलेट कर रही है कि आपसे नियरेस्ट ड्राइवर कौन सा है, आपके यूजर से नियरेस्ट ड्राइवर कौन सा है, फिर डेस्टिनेशन जाने के लिए बेस्ट रूट कौन सा अवेलेबल है। तो इसका मतलब उसके पास बहुत सारे रूट्स अवेलेबल हैं जिसमें से बेस्ट चूज करना है। फिर कितना टाइम लगेगा इसके अंदर और कितनी पेमेंट होना चाहिए जब आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं, क्या रूट्स, क्या रेट है, क्या फेयर चल रहा है, ये सारी चीजें कैलकुलेट हो रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं इन सब के अंदर डेटा इन्वॉल्व है, इन सब के अंदर डेटा साइंस इन्वॉल्व है। तो डेटा साइंस क्या चीज है, अच्छी तरह इस बात को समझ लें कि डेटा साइंस बेसिकली एक फील्ड है कंप्यूटर साइंस की जिसको आप सब ब्रांच कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स की, इसको आप ब्रांच कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि डेटा साइंस इज पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, आप ये कह सकते हैं कि डेटा साइंस इज पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। यानी ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे हम डेटा एनालिसिस भी करते हैं, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी इन्वॉल्व होती है, यहाँ पर मशीन लर्निंग भी इन्वॉल्व होती है। तो ये सारी चीजों का एक मिक्सचर है जो कि डेटा साइंस की सूरत में हमें नजर आता है। तो यानी कि अगर हम मजीद इसको एलेबरेट करें तो हमारे पास कुछ साइंटिफिक मेथड्स होते हैं जो कि हमें स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करती है। फिर हम कुछ मॉडल डेवलप करते हैं बाय यूजिंग डेटा एनालिसिस, और मशीन लर्निंग के हमें कुछ एल्गोरिथम्स चाहिए होते हैं जिसकी मदद से हम अपने गोल को अचीव करते हैं। अगर आपको जहन में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप चैट पे पोस्ट कर सकते हैं, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस वक्त अगर हम देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें, सिर्फ यूएसए की बात करें तो इस वक्त तकरीबन 2399 डेटा साइंस जॉब लिस्टिंग है। यानी कि लोगों को इतने डेटा साइंटिस्ट रिक्वायर्ड हैं। ये बड़ी कंपनीज की बात हो रही है। यानी कि यूएस की बात करें तो वहां पर एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1,40,000 से 1,90,000 लोगों की शॉर्टेज है
जिनके अंदर डेटा एनालिटिकल स्किल्स हों। फिर इसी तरीके से एक और ख़ास बात ये है कि जो डेटा साइंस है, इसकी जो अट्रैक्शन है, वो इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट ये है कि जो सैलरी पैकेज मिलता है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं डेटा एनालिसिस करने वाले, ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो सैलरी पैकेज इनका बड़ा ज़बरदस्त है। यानी कि ऑन एवरेज $130,000 यूएस में पर ईयर डेटा एनालिसिस करने वाले कमा रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है लोगों का जिनके अंदर ये स्किल्स हों। ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों के अंदर ये इन स्किल्स की कमी है। तो ये जो कोर्सेज हैं, डेटा साइंस, बिग डेटा, इस तरह के जितने भी कोर्सेज हैं, ये इन्हीं स्किल्स को डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स को तैयार किया जाता है, सो दैट कि ये जो शॉर्टेज है मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, उसको किसी तरीके से हम ओवरकम कर सकें। मजीद इसके अंदर अगर हम डिस्कस करें तो देखें होता क्या है कि मतलब हमें पता क्या होना चाहिए डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि कौन है जो डेटा साइंटिस्ट बन सकता है। क्या ये हर किसी के बस की बात है, या कुछ खास किस्म के लोग ही होते हैं जिनके लिए ये पॉसिबल है? फिर डेटा साइंटिस्ट इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? फिर डेटा साइंस का लाइफ साइकिल क्या है, और बिग डेटा का क्या रोल है, डेटा का क्या रोल है डेटा साइंस की ये जो रेवोल्यूशन है। और फिर ये कि अगर हम डेटा साइंस में प्रॉस्पर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस कैरियर को डेवलप करने के लिए किस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक और खास बात जो आपको यहाँ इस स्लाइड में नजर आ रही है वो ये है कि एक सेंटेंस यहाँ पे लाइन लिखी हुई नजर आ रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। डेटा इज द ऑयल ऑफ अवर जनरेशन। यानी इस वक्त जो डेटा है उसकी वैल्यू इतनी है जितनी कि आज से कुछ अर्सा पहले, या इस वक्त आप भी कह सकते हैं, ऑयल की जो वैल्यू है, बिल्कुल उसी तरीके से डेटा की भी वैल्यू है। जिस कंपनी के पास डेटा मौजूद है उसके पास पावर मौजूद है। और इस बात का मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बात समझाने की कोशिश की थी कि फेसबुक की असल पावर उनका वो डेटा है जो उनके पास मौजूद है, गूगल की असल पावर वो डेटा है जो उनके पास मौजूद है। तो इतना सारा जो डेटा मौजूद है ऑर्गेनाइजेशंस के पास, बिजनेसेस के पास, तो डेटा साइंस क्या करती है? डेटा साइंस हेल्प करती है किसी भी बिजनेस को टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर। यानी फेसबुक को ये पता है कि उसका यूजर क्या चाहता है, क्या देखना पसंद करता है, किन चीजों को लाइक करता है। फिर डेटा साइंस हेल्प करती है टू फाइन ट्यून इट्स मैसेजिंग। यानी आपको क्या दिखाना है? अगर आप नेटफ्लिक्स पे जाते हैं तो आपको कौन सी मूवी दिखानी चाहिए, आपको क्या रिकमेंडेशन होनी चाहिए। इसी तरीके से यूट्यूब पे जब आप जाएं तो आपको यूट्यूब क्या वीडियो दिखाए। इसी तरीके से कैप्चर न्यू मार्केट शेयर, यानी कि जब हम मार्केट के अंदर एंटर हों तो किस जगह इन्वेस्ट करें, कौन सी जगह हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल हो सकती है, कौन सा ट्रैक हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ये सारी चीजें आपको इन चीजों के अंदर डेटा साइंस आपकी हेल्प करती है। मजीद इसको आगे बढ़ते हैं तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो ये है कि भाई कौन है वो शख्स या मोहतरमा जो कि डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो इसमें अच्छी तरह ये बात समझ लें कि एनीवन कैन बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। कोई भी डेटा साइंटिस्ट बन सकता है, बट नॉट एवरीवन कैन बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। लेकिन हर कोई डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकता। ये दोनों चीजें जरा मिलाकर समझिएगा, क्योंकि सिर्फ अगर एक ही सेंटेंस हम देखेंगे तो फिर थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी। तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो आपके पास मैथमेटिक्स आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, कुछ एनालिटिकल रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिर डेटा के साथ वर्क किस तरीके से करना है ये आपको पता होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट स्ट्रांग होना चाहिए, क्वेश्चनिंग यानी कि जब आप कोई चीज देख समझ रहे हैं तो क्वेश्चन करने की पावर होनी चाहिए आपके पास, डेटा इंजीनियरिंग क्या होती है इसकी नॉलेज होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स का पता होना चाहिए आपको, और आप एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह सोचें, चीजों को परखें और फिर डिसीजन लें। ये स्किल्स आपके पास होंगे तो आप एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। होपफुली मेरी बात क्लियर है।
अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप चैट पे पोस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि एक आर लैंग्वेज भी होती है, आर स्टूडियो में यूज होती है, उसमें भी डेटा साइंस का काम होता है। इसी तरह पाइथन है, वो भी यूज होती है। तो कोई सा भी ट्रैक यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। ज्यादातर जो फीलिंग है या अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो आर को प्रेफर करते हैं, और जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जैसे कि टेक्निकल बैकग्राउंड से मेरा कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है या प्रोफेशनल है जिसने कुछ लैंग्वेजेस करी हुई हैं, तो वो फिर पाइथन को चूज कर लेते हैं और आर को भी चूज कर लेते हैं। तो अब ये बेसिकली क्या है, इन दोनों लैंग्वेजेस के थ्रू, इन दोनों टेक्नोलॉजीज के थ्रू आप ये सारी एनालिसिस और रिजल्ट्स वगैरह और उनको डिस्प्ले करने का काम कर सकते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एक डेटा साइंटिस्ट के लिए ये जानना जरूरी है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या चीज हो सकती है और क्या चीज नहीं हो सकती। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत ज्यादा लैक करती है, और वो ये है कि आस्किंग द राइट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन पूछना है, किस वक्त क्या पूछना है। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो हैं वो ये जब कंट्रीब्यूट करती हैं तो इसके नतीजे में हमें बेस्ट आंसर मिलता है अपने प्रॉब्लम का। एक और क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि व्हाई डू वी नीड डेटा साइंटिस्ट। ये डेटा साइंटिस्ट आखिर करते क्या है। तो डेटा साइंटिस्ट बेसिकली, थोड़ा सा पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। देखें डेटा साइंटिस्ट क्या करता है, जो भी कंपनी है जिसमें वो काम कर रहा है, वो बेसिकली उस कंपनी में बहुत ज्यादा डेटा मौजूद है, हर तरह का डेटा मौजूद है। मिसाल के तौर पे आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हैं तो वहां पे स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है, टीचर्स का डेटा मौजूद है, क्लासेस का डेटा मौजूद है, और बेतहाशा डेटा मौजूद है। आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में काम करते हैं तो वहाँ एम्प्लॉयज का डेटा मौजूद है, दीगर जो स्टाफ है उनका डेटा मौजूद है, प्रोजेक्ट्स का डेटा मौजूद है। आप किसी और कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर आप हर तरह का डेटा मौजूद है। तो ये जो सारा डेटा मौजूद है, तो डेटा साइंटिस्ट का काम ये होता है कि वो उस कंपनी की फ्यूचर डायरेक्शन को अपनी कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने रखे, वो डायरेक्शन तय करे जिस डायरेक्शन में उस कंपनी को जाना चाहिए बेस्ड ऑन द डेटा। उस डेटा की एनालिसिस करे और उसकी बेसिस पे कुछ डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की। यानी बेसिकली क्या क्या काम करना होता है, डेटा साइंटिस्ट का काम ही होता है कि वो ये सजेशन दे डेटा की एनालिसिस करके कि क्या तरीके अप्लाई करें जिसकी मदद से हमारी कंपनी की कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। डेटा साइंटिस्ट का काम ये होता है कि वो अपनी कंपनी को ये बताए कि कौन कौन सी ऐसी नई प्रोडक्ट्स हैं जो हमें लॉन्च करनी चाहिए इस वक्त, इस सूरत हाल में। डेटा साइंटिस्ट का काम ये होता है कि वो अपनी कंपनी को एनालिसिस करके ये बताए कि किस तरीके से हम अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से जो कस्टमर हैं उनकी डेमोग्राफिक्स को देखना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर की नीड्स को देखना, ये चीजें भी सारी डेटा साइंटिस्ट के जिम्मे आती हैं। फिर जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नई लॉन्च करनी है, किसी नई मार्केट में जाना है, सोशल इश्यूज को देखना है, ये सारे जो डिसीजन मेकिंग वाले काम होते हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को सजेशन देना, ये सारे काम डेटा साइंटिस्ट के होते हैं। और उसके लिए वो बहुत सारे टूल्स यूज करता है। तो अब देखें यहाँ पर, अगर हम स्लाइड में देखें तो यहाँ पर बताया जा रहा है डेटा साइंस लाइफ साइकिल। यानी सबसे जो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो है जनाब डेटा डिस्कवरी। डेटा डिस्कवरी क्या है कि हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आ रहा होता है। वो डेटा हमें एक जगह कलेक्ट करना होता है, फिर उसको प्रिपेयर करना होता है। यानी उसमें कुछ डेटा मिसिंग है, कुछ सही फॉर्मेट में नहीं है, तो उसको प्रिपेयर करना, फिर उस डेटा की मदद से मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलप करना, और उन मॉडल्स की मदद से फिर हम उसकी कुछ प्रिडिक्शन करते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं,
और फिर ये जो प्रेडिक्शन और एनालिसिस होती है, ये हम दुनिया के सामने रखते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखते हैं, जिसके ये जो 5th स्टेप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग्स। ये सारे स्टेप्स जो हैं ये डेटा साइंस का लाइफ साइकिल कहलाता है, फ्रॉम स्टेप 1 to 5। और इसके अंदर ये सारी चीजें डिस्कस, एक डेटा साइंटिस्ट को इन सारी चीजों का पता होना चाहिए और इन सारी चीजों का एक्सपर्ट होना चाहिए उसे। फिर डेटा साइंस में जो ये जो आप हमने पिछली स्लाइड में देखा ना, मैथमेटिकल मॉडल, और उस मॉडल की मदद से हम कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कुछ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो ये सारा काम उसके लिए हम कुछ एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। वो एल्गोरिथम्स क्या करते हैं कि उनको हम कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं और वो उस डेटा की बेसिस पे कुछ रिजल्ट जनरेट करके देते हैं, और उस रिजल्ट को फिर हम शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और फिर कोई डिसीजन लिया जा सकता है उस रिजल्ट की बेसिस पे, फाइंडिंग की बेसिस पे। तो ये एल्गोरिथम्स की नॉलेज होना भी एक डेटा साइंटिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन कौन से एल्गोरिथम्स होते हैं ज्यादातर जो डेटा साइंस में यूज होते हैं? जो कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट हैं उनको अच्छी तरह इन चीजों का आइडिया होगा। तो डेटा साइंस के अंदर जो एल्गोरिथम्स यूज होते हैं उसमें रिग्रेशन रिलेटेड एल्गोरिथम्स भी यूज होते हैं, क्लासिफिकेशन वाले एल्गोरिथम्स भी यूज होते हैं, क्लस्टरिंग वाले एल्गोरिथम्स भी यूज होते हैं, रैंडम फॉरेस्ट है, डिसीजन ट्रीज हैं, ये सब डेटा साइंस के अंदर यूज होते हैं। और भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जिनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मशीन लर्निंग की सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये सारी चीजें जो हैं वो यूज होती हैं, डेटा साइंटिस्ट को यूज करनी होती हैं। ये डिपेंड करता है कि देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी नीड होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी यूनिक नीड होती है, उनका अपना एक यूनिक डिजायर्ड रिजल्ट होता है। तो ये अब डेटा साइंटिस्ट का काम है कि वो ये डिसाइड करे कि आइदर मैं सुपरवाइज्ड लर्निंग यूज करूंगा कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज करूंगा, मुझे रिग्रेशन पे काम करना है कि मुझे क्लासिफिकेशन पे काम करना है, या मैं क्लस्टरिंग कर रहा हूँ। ये डेटा साइंटिस्ट का काम है। नीड उसको उसकी ऑर्गेनाइजेशन बताएगी और उसकी बेसिस पे वो डिसाइड करेगा। इसका मतलब ये है कि उस डेटा साइंटिस्ट के पास ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो ये काम कर सकता है ना। तो ये जो बिग डेटा है, यही बेसिकली ये डेटा साइंस रेवोल्यूशन को ड्राइव कर रहा है। इस वक्त जो रेवोल्यूशन हमें नजर आ रही है, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा हर ऑर्गेनाइजेशन का है बेसिकली, वो उसी की बस बेसिस पे ये डेटा साइंस इस वक्त रेवोल्यूशन चल रही है। डेटा साइंस की कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो अमेजोन में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, फेसबुक में, बैंक ऑफ अमेरिका से लेकर बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम बैंक्स, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जनरल इलेक्ट्रिक, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी की भी बात कर लें, यहाँ खैर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा साइंटिस्ट की जॉब अवेलेबल है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, आपको ये जॉब मिल सकती है अगर आपके पास स्किल्स हैं तो। इन जनरल अगर हम डेटा साइंटिस्ट की सैलरी की बात करें तो जो एंट्री लेवल डेटा साइंटिस्ट होते हैं ऑन एवरेज तकरीबन $95,000 तक उनकी सैलरी होती है, और मिड लेवल डेटा साइंटिस्ट जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है उनकी सैलरी तकरीबन अराउंड $130,000 से लेके $195,000 तक है। ये मैं आपको इस वक्त 2020 की बर्ड्स वर्क स्टडी का रिपोर्ट बता रहा हूँ। और जो एक्सपीरियंस डेटा साइंटिस्ट हैं उनकी सैलरी तकरीबन $165,000 से लेकर $250,000 तक चली जाती है। यानी ये इस डेटा साइंटिस्ट का जो कैरियर है, इस कैरियर में आप बेतहाशा कमा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास स्किल्स होने चाहिए। स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आप यहाँ पे भी देखें कि अगर आपको यहाँ स्लाइड में देखें तो इस वक्त करंटली जो सबसे ज्यादा डिमांड है, जिस जॉब की सबसे ज्यादा, अगर हम कहें कि जॉब आती हैं, अवेलेबल होती हैं, तो किस जॉब की सबसे ज्यादा डिमांड है? इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड डेटा साइंटिस्ट की है।
क्योंकि ये जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सर्वे के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि एयर एयर वाइज तकरीबन हमारे पास जो एम्प्लॉयज हैं जो एज अ डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी रेंज तकरीबन सालाना 13 लाख 14 लाख अराउंड इस तरीके से होती है, और इतनी कमाई वो कर रहे होते हैं, अर्निंग कर रहे होते हैं। ये भी एक अच्छी सैलरी है एस अगर हम इनको इन जनरल पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से देखें। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, आपको ये समझाने की कोशिश करी कि डेटा साइंस क्या होती है और इसका लाइफ साइकिल क्या है, और डिफरेंट चीज़ें इसमें डिस्कस करने की कोशिश करी। अब बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह सर हसन आदिल इसको कंटिन्यू करेंगे। इन बिटवीन अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी पोस्ट कर रहे हैं चैट पे पोस्ट कर सकते हैं। ओवर टू यू सर हसन आदिल, थैंक यू। थैंक यू इशार साहब, आपने काफ़ी डिटेल ओवरव्यू प्रोवाइड किया है about data science, and I would like to continue from सर आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। thank you Isar Saab for detailed presentation about data science. I hope के students ने realize किया होगा कि कितनी, और यहाँ पे एक पहले मैं एक बात कहता चलूँ कि इसरार साहब ने काफ़ी कुछ एग्जाम्पल्स ली, एप्लीकेशंस की। तो जैसे मैंने स्टार्ट में आप लोगों से कहा कि देयर आर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, देयर आर अनलिमिटेड एप्लीकेशंस। आप सोशल साइंस से लेके न्यूरल साइंस से लेके इंजीनियरिंग, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई किसी भी टाइप की इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो फाइनेंस हो, हर डोमेन के अंदर डेटा साइंस की एप्लीकेशंस मौजूद है। तो याद रखिएगा कि एज ए डेटा साइंटिस्ट आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब नहीं करनी है। The whole variety of organizations are willing to hire data scientists. So that is why यही वजह है कि why there are so much opportunities, why there are so much demand in the domain of data science. This is the basically reason. Okay, तो याद रखिएगा कि आपने सेल्फ ड्राइविंग कार की एग्जाम्पल इसार साहब ने ली। There are many 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 opportunities, there are many 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 applications, ठीक है ना। तो आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, बट याद रखिएगा आपके पास राइट स्किल सेट होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव द राइट स्किल सेट, बिकॉज एक बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है। इसार साहब मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? जी सर सही आ रही है। सॉरी, जी सही आ रही है सर। जी ठीक है, थैंक यू। ओके, सो याद रखिएगा कि डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ये तमाम चीजें इतनी मैटर नहीं करती है। पहली जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप कितने ज्यादा स्किलफुल हैं, आप कितने ज्यादा स्किल्ड हैं। और अभी कुछ लोगों के सवालों के जवाब मैं दे रहा था, फिर मैंने कहा लाइव भी जवाब दे दूंगा। रिगार्डिंग कुछ ने, एक साहब ने पूछा कि मैं पाइथन सीख लूंगा तो डेटा साइंटिस्ट बन जाऊंगा, और कुछ लोगों ने कहा कि पाइथन आती हो तो क्या मुझे आरबी सीखना जरूरी है। तो ये तमाम सवालात हैं जो कि बहुत वाकई बड़े इंपॉर्टेंट है और समझना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ मैं बताता चलूं कि डेटा साइंस किसी एक टूल का नाम नहीं है कि मैंने पाइथन सीख ली, पाइथन में कोई स्पेसिफिक लाइब्रेरी सीख ली। आपने मे बी साइकिट के बारे में सुना होगा, साइकिट लर्न के बारे में, अगर पाइथन पे काम किया होगा आपने। ओके, सो याद रखिएगा दैट इज वाई। और फिर मैंने शुरू में भी कहा था कि हम डेटा साइंटिस्ट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम बीआई एक्सपर्ट से, यानी बिजनेस इंटेलिजेंस से और मशीन लर्निंग से। इसके अलावा जो है वो और जो रेलिवेंट एरियाज हैं लाइक बिजनेस एनालिटिक्स हो गया। तो याद रखिएगा डेटा साइंटिस्ट का बड़ा क्रूशियल रोल है।
और वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। और डेटा साइंस किसी एक स्किल का नाम नहीं है। और यहाँ पे एक चीज और भी क्लियर करता चलूं कि शायद आपके पास शायद मिसार साहब की प्रेजेंटेशन से शायद आपको लगा हो कि इट इज मैंडेटरी टू हैव अ डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे मैं क्लियरली स्टेट कर लूं, नो, if you are a computer scientist, very good. If you are an engineer, very good. If you are none of them, then is it possible for you to pursue as your career as a data scientist? My answer is very specific, and which is actually yes. You might be thinking about it, why yes? If I don't know basically programming, if I don't know basically algorithm analysis, if I don't know basically so many other fields, then how I can become a data scientist? तो याद रखिएगा, डेटा साइंटिस्ट जो है वो कंप्यूटर साइंटिस्ट नहीं है। उसने एल्गोरिथम डेवलप नहीं करने, उसने एल्गोरिथम के एनालाइज नहीं करना, उसने सोफिस्टिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं करना, बल्कि उसने स्मार्टली टूल्स को यूज करना है। उसके पास राइट डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास हैकिंग स्किल सेट होनी चाहिए। अब हैकिंग क्या है इस पे बात करते हैं। आपके जहन में शायद आए कि मैं आई एम टॉकिंग अबाउट हैकिंग विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैकिंग विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी। हैकिंग इज अ जनरल टर्म कि आप किस तरीके से आप किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को हैक कर सकते हैं, किस तरीके से यू कैन कम अप विद ए सोल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। For that you might not be an expert of that particular domain or expert of that particular field. So without that, how quickly, how smartly you can bring up or you can come up with a solution. तो याद रखिएगा कि आपके पास as a data scientist you must be familiar with multiple languages and multiple tools. Like मैं recommend हमेशा करूंगा, you should start with a single programming language but move towards another language. Like I will suggest you to learn Python and R as well. Mind it, if you, Python is a general purpose programming language. In many cases, I'm not saying in all cases, but in many cases you don't need to develop a end-to-end application, but you have to basically provide insight. Mind it, what I'm saying, insight. You want to predict something, you want to optimize something, and after optimization, um, after basically having solution, after some prediction, you have to present your recommendation, you have to present your suggestion in front of your management, in front of your strategic decision making resources और मैनेजमेंट। अगेन क्योंकि अगेन मैनेजमेंट में आपके पास देखिए कुछ लोग ऑपरेशनल मैनेजमेंट में भी होते हैं, कुछ लोगों का काम होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग लेना। तो दे माइट नॉट गोइंग टू यूज ए फुल फ्लैज एप्लीकेशन लाइक ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन। So that is why it is very important to know that if you know about R language, which is a very easy language, if you don't have any background in programming, but you have basically some knowledge about how to basically formulate a solution to a particular problem, then in that case you can very easily and comfortably learn R language. तो R को सीखना बहुत आसान है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपने जो बिल्ट इन फंक्शंस होता है उनको इन्वोक करना होता है with the right parameters and with right values of the parameters, and maybe some basic programming like कोई loop वगैरह या कोई condition वगैरह लगा लें, that's good enough to solve even a most complex problem. That is why I always suggest you to learn R language. But what about Python? Python is a general purpose programming language. You can develop a whole end-to-end application with a sophisticated user interface, with an integration with your mobile application might be.
by using Python. So that is why if you are comfortable with Python as well, then it is always an upper hand. It is always an advantage for you. But yaad rakhiye, if you are not a computer scientist and you want to jump into data scientist career, then I will suggest you to always start with R. ठीक है, ये मेरा पहला सजेशन है आपके लिए, बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस. ठीक है, कि आप ऑलवेज स्टार्ट विथ आर, specifically if you are not a computer scientist. It is very easy to learn, very comprehensive libraries and very detailed documentations. Okay, तो ये तो पहली एक बात हो गई आर और पाइथन की. अच्छा, एक सवाल इससे और निकलता है कि क्या हमें आर और पाइथन सीखना पड़ेगा या कोई और तरीके कार भी है. लेकिन देयर आर मेनी सोफिस्टिकेटेड विजुअल tools are available, okay, and very popular, like you might heard about Rapid Miner. याद रखिएगा, Rapid Miner is a commercial tool. As a student, as a learner, आप free of cost यूज कर सकते हैं, जो कि आपको लिमिटेड डेटा यूज करने की ऑप्शन देगा. आई थिंक 10,000 डेटा तक आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर. बट इन रियल वर्ल्ड के अंदर आपके पास बिलियन ऑफ रिकॉर्ड हो सकते हैं. ठीक है, बट लर्निंग के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो रैपिड माइनर की अच्छी बात यह है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप पूरा प्रोसेस, पूरा डेटा साइंस का जो आपका पाइपलाइन है वो आप डिजाइन कर सकते हैं. तो याद रखिएगा, आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू टू लर्न रैपिड माइनर, बट अगेन इनिशियली स्टार्ट विद द आर, बट लेटर ऑन आप रैपिड माइनर पर जा सकते हैं. अच्छा, आप कहते हैं सर मैं प्रोग्रामिंग में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूं और मुझे टाइम लगेगा, बट आई वांट टू स्टार्ट learning and experiencing the true essence of data science. So what should I do? Then I will suggest you to download Rapid Miner and start using it. बहुत आसान इंटरफेस है, जिसको कहते हैं WYSIWYG. क्या कहते हैं? WYSIWYG, यानी what you see is what you get. उस तरह का इंटरफेस है, ड्रैग एंड ड्रॉप. आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को ड्रैग करेंगे, कनेक्ट करेंगे, उसके पैरामीटर्स को विजुअली कॉन्फ़िगर करेंगे, सिंपली रन करेंगे, आपका पूरा मॉडल डेवलप हो जाएगा. विजुअलाइजेशन के लिए जो ग्राफ्स होंगे, जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स होंगी, तमाम चीजें जनरेट हो जाएगी. पूरे कंप्लीट कंपैरिजन जनरेट कर देगा आपके लिए. बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल, सोफिस्टिकेटेड टूल है. याद रखिएगा, जब मैं बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स पढ़ाता हूं या मैं अपने फैकल्टी मेंबर को सजेस्ट करता हूं कि भाई आप रैपिड माइनर यूज करें, याद रखिएगा बिजनेस एनालिटिक्स का जो कोर्स है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हम बीबीए के बच्चों को ऑफर करते हैं. दे आर नॉट फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, दे आर नॉट इवन फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. ओके, सो फॉर देम आई सजेस्ट यू टू यूज रैपिड माइनर. अच्छा, देयर आर मेनी अदर टूल्स, लेकिन अब मैं ज्यादा अभी इस पे नहीं जाता. अभी हम इसको 3 पे रखते हैं कि अगेन if you are from computer science, okay, fine, go for Python. If you are from non-computer science background, but you are familiar with programming or you are motivated towards programming, then go for R. If you are among none of them, then go for Rapid Miner. ठीक है, आप सीख लेंगे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो दे आर विलिंग टू स्पेंड, और स्पेसिफिकली अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट या कस्टमर के लिए काम करेंगे तो he must be willing to spend money to expedite the process. याद रखिएगा, रैपिड माइनर बहुत तेजी से काम करता है. तेजी से मुराद मेरी ये नहीं कि रिजल्ट निकालता है तेजी से, बट वो मॉडल जो शायद आप पाइथन या आर के अंदर शायद आधा घंटे में बनाएं, और अगर आप रैपिड माइनर में कंफर्टेबल हैं तो माइट बी यू कैन डेवलप द सिमिलर थिंग इन 5 to 10 मिनट्स. और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई सुनी सुनाई बात मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा. ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू फॉर द रैपिड माइनर. तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा आज कि पाइथन है या आर है या रैपिड माइनर है, आपने कैसे यूज करना है. अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि मैं जूनियर से सीनियर लेवल पे जा रहा हूं, कैसे जाऊंगा? तो याद रखिएगा, लर्न एज मेनी टूल एज पॉसिबल. कुछ लोग आपसे कहेंगे नहीं ये गलत बात है. नहीं जनाब अली, यकीनन आप किसी एक के मास्टर होने चाहिए, लेकिन आज के दौर में बाकी टूल्स के से भी आपको कंफर्टेबल होना चाहिए. याद रखिएगा, मैंने एक चीज यहाँ पे मिस की है और मैं आपको यहाँ पे बता दूं दोबारा कि आपने एक्सेल को बहुत अच्छी तरह से सीखना है. बिलीव मी, ठीक है, बिलीव मी, एक्सेल इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल.
And again, believe me, many of the data science tasks you can able to solve by using simply Excel. अच्छा, एक्सेल में भी एक मशीन लर्निंग प्लगइन आता है, आप उसको, जिसमें मशीन लर्निंग से फिलहाल मुराद मेरी ये कि जो एल्गोरिथम्स हैं वो आप एक्सेल में रन कर सकते हैं. आई थिंक उसका नाम है एक्सेल माइनर. उसका एक कंपोनेंट है जो क्या कोई थर्ड पार्टी है जो कि बाय करना पड़ता है एक्सेल माइनर के नाम से. तो अगर आप वो इंस्टॉल कर लें, जो कि बहुत चीप है, इतना महंगा नहीं है, और जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें तो दे मस्ट बी रेडी टू, और दे मस्ट बी विलिंग टू स्पेंड सम मनी, बिकॉज याद रखिएगा जो वो खर्च करेंगे उससे कहीं ज्यादा वो सेव करेंगे, उससे कहीं ज्यादा वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की वेस्ट को रिड्यूस करेंगे, कॉस्ट कटिंग होगी, प्रॉफिट ऑप्टिमाइज होगा, मैक्सिमाइज होगा. ठीक है, तो याद रखिएगा एक्सेल को कभी भी अंडरमाइन ना करें आप. ठीक है, तो आप एक्सेल को यूज करें. एक्सेल में आपको कमांड होनी चाहिए. याद रखिएगा, जब मैं इवन मास्टर्स या बैचलर्स लेवल पे डेटा साइंस का कोर्स पढ़ाता हूं तो वहां एक्सेल जरूर करवाता हूं किसी हद तक, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू यूज टूल एंड वेरी पावरफुल. डोंट अंडर एस्टिमेट इट. तो एक्सेल जरूर सीखिए. अच्छा, इसके अलावा आपके पास अगर आप में से कोई बिजनेस का स्टूडेंट है, बीबीए एमबी का है, तो याद रखिए कि एसपीएसएस आप लोग बहुत यूज करते हैं. अच्छा, एसपीएसएस प्राइमरली स्टैटिस्टिकली टूल है, बट कई ऐसे टास्क हैं डेटा साइंस के जो कि आप जो कि आप एसपीएसएस में भी कर सकते हैं. बट उसके बाद मैं आपको एक टूल बताऊंगा जिसका नाम है सैस. सैस. सैस इज वेरी पावरफुल टूल. अगेन, इट्स अ कमर्शियल टूल, इट्स ए एक्सपेंसिव टूल, but if you are working for the international client, mind it, SAS is a very powerful tool with programming capabilities as well. ठीक है, तो आप SAS को यूज कर सकते हैं. अच्छा, इसके अलावा आप में से हो सकता है कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो, तो मैं यहाँ पे बताता चलूं कि मैटलैब का आपने नाम सुना होगा, और मैटलैब इज ए वेरी पावरफुल एंड वेरी इजी टू यूज टूल, बट the only disadvantage is, again, MATLAB is a quite expensive tool. Each of its basically component having its own licensing and quite expensive. Otherwise, it is very easy to learn learn programming in MATLAB, and it is very easy to use different toolboxes. वहां पे हम plugin नहीं कहते, वहां toolboxes कहते हैं. बने बनाए toolboxes available हैं. You can use these toolboxes. और अच्छी बात यह है कि विजुअलाइजेशन की जितनी जबरदस्त लाइब्रेरी मैटलैब में मौजूद है, शायद किसी और में मौजूद नहीं है. ठीक है, आप कहेंगे सर मैं इससे डिसएग्री करता हूं, तो बिल्कुल आप डिसएग्री करेंगे, और मैंने खास के ये वर्ड यूज किया है बिकॉज इवन जो दूसरी लाइब्रेरीज मौजूद है उन्होंने भी इंस्पिरेशन जो ली है वो मैटलैब से ली है. जैसे आपने मैट प्लॉट का नाम सुना होगा. ठीक है, मैट प्लॉट की लाइब्रेरी है जो कि आप पाइथन में यूज करेंगे, या सिमिलर इसकी लाइब्रेरी मौजूद है आर के लिए. तो याद रखिएगा वो मैटलैब से इंस्पायर होकर बनाई गई है, जब भी इसको मैट प्लॉट कहा जाता है. ठीक है, तो मैं कुछ चीजें क्लियर करते जा रहा हूं आपको. तो इफ यू आर इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर्स नॉर्मली मैटलैब को यूज करते हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है कि आप मैटलैब को यूज कर सकते हैं, और मैटलैब आपको बहुत पावरफुल लाइब्रेरीज टूल बॉक्सेस देता है, इंक्लूडिंग डीप लर्निंग. आपने डीप लर्निंग का नाम सुना होगा. तो डीप लर्निंग की बहुत सोफिस्टिकेटेड लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है. यू कैन बिल्ड और यू कैन यूज deep learning algorithm, and you can build model based on deep learning very easily by using MATLAB toolboxes. इसके अलावा आपने एक और लफ्ज बताता चलूं आपको, आपने नाम सुना होगा सीपीयू. आप बोलेंगे सर ये तो सबको पता है, सीपीयू आपके कंप्यूटर में लगा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये चीज होता है जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम जीपीयू कहते हैं. याद रखिएगा डीप लर्निंग में जीपीयू बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाईली पैरेलल आर्किटेक्चर. एक मामूली से मामूली आज के दौर का जो जीपीयू होता है, उसके अंदर 1000 कोर लगे हुए होते हैं. 1000 कोर, क्वाड कोर नहीं, 1000 कोर. ठीक है, अब इसके डिटेल में जाते हैं क्योंकि हम इतना टेक्निकल सेशन नहीं है, वन आई लव टू एक्सप्लेन व्हाई, बट अगेन जीपीयू. तो याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ मैंने इसलिए बताया आपको कि आप जीपीयू को भी यूज कर सकते हैं इन मैटलैब बहुत इजीली. तो मैटलैब आप बिल्कुल, अगर आप इंजीनियर हैं,
मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्टार्ट विद मैटलैब. If you are from business domain or social sciences domain, I will suggest you to start with either RapidMiner or R. If you are a computer scientist, okay, fine, you can start from Python. तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई है, ठीक है. अच्छा, एज ए डेटा साइंटिस्ट आपको विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज का पता होना चाहिए. कौन कौन सी लाइब्रेरीज मौजूद है, क्या फीचर मौजूद है. बिकॉज देखें, जैसे एक बात कही जाती है, पिक्चर वर्थ 1000 ऑफ वर्ड्स. ठीक है, आपके टॉप मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि आपके एक्सेल की शीटें या डेटा टैबुलर फॉर्म में पढ़ें. दे वांट कॉन्क्रीट आंसर. So it is very easy to convey complex insight or complex feature prediction by using visualization rather than by using some textual form or some Excel like form or spreadsheet like form, right? तो आपको visualization आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. Again, presentation skills. क्योंकि देखिए आपने बहुत कुछ फाइंड कर लिया बट आप कन्वे नहीं कर सके तो याद रखिएगा उस फाइंडिंग का कोई फायदा नहीं है. तो आपने अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप करनी है ताकि आप अपने फाइंडिंग्स को प्रॉपर्ली कन्वे कर सकें, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ नॉन टेक्निकल पीपल. बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस द टॉप मैनेजमेंट आर नॉट फ्रॉम टेक्निकल प्रोग्राम बैकग्राउंड, जनरली दे आर फ्रॉम बिजनेस बैकग्राउंड. हैकिंग का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. हैकिंग का मतलब है कि क्विक वे में आपने सोल्यूशन फाइंड करना है विदाउट स्पेंडिंग मंथ्स और वीक्स. ठीक है. इसके अलावा डोमेन नॉलेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिस भी डोमेन के में काम कर रहे हैं आप एज ए डेटा साइंटिस्ट, ट्राई टू मैक्सिमाइज योर नॉलेज. ट्राई टू मैक्सिमाइज नॉलेज अबाउट व्हाट, अबाउट द डोमेन. अगर आप डोमेन से क्या मुराद है, फॉर एग्जाम्पल आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज क्या है, कैसे स्टॉक काम करता है, कैसे स्टॉक में उतार चढ़ाव होता है, कैसे बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है. समथिंग you must know about it. Without that you will be doing like a donkey. ठीक है, जो कि बेचारा उसको आप जो है वो आप उसको रस्सी खींचते रहते हैं, वो बेचारा सीधा सीधा चलता रहता है. राइट पे अगर आप राइट बाई रस्सी एक तरफ से खींचेंगे तो राइट पे मुड़ जाएगा वो, समथिंग लाइक दैट. बट वो नहीं अंडरस्टैंड करता कि वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, it is very crucial skill set. And what is this? You must need to have a good understanding about the domain in which you are working as a data scientist. ठीक है. अब ये तमाम चीजें जो है डिफरेंशिएट कर रही है. मशीन लर्निंग एक्सपर्ट डेफिनेटली वो नए मॉडल्स बना सकता है, नया एल्गोरिथम डिवाइस कर सकता है, नया एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम को इम्प्रूव कर सकता है. डेटा माइनिंग एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, आपके पास नॉर्मली डेटा वेयर हाउस होते हैं या हो सकता है किसी और फॉर्म में भी डेटा पड़ा हो, उसके ऊपर वो एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम्स को लगा के उसको प्रेजेंट कर देता है. लेकिन एज ए डेटा साइंटिस्ट यू मस्ट बी कंफर्टेबल विथ मेनी 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 थिंग्स. तो याद रखिएगा, दैट इज व्हाई डेटा साइंटिस्ट डज नॉट नीड टू बी ए कंप्यूटर साइंटिस्ट, डज नॉट नीड टू बी a sound background of computer science. If you have, again it's very good. If you don't have, you don't need to be worried about it. But the only thing which is required is actually आपकी मोटिवेशन. ठीक है, आपकी मोटिवेशन मैटर करती है. आप कितने मोटिवेटेड हैं, कितनी हार्ड वर्किंग है. ठीक है. So that is why it is very important to have this thing rather than basically the background relevant to the computer science. Okay. अच्छा, किसी ने सवाल पूछा हुआ था Tableau के बारे में. याद रखिएगा, Tableau is, you can say Tableau is the number 1 visualization tool. तो याद रखिएगा, अगर आप इसके बाद जो नेक्स्ट टूल आपने सीखना है वो है Tableau. Tableau is again an expensive tool. ठीक है, इसे अगेन एक्सपेंसिव टूल, बट दुनिया में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. बहुत पावरफुल, बहुत सोफिस्टिकेटेड. ठीक है, बहुत पावरफुल, बहुत सोफिस्टिकेटेड आप जो है वो विजुअलाइजेशन, एंड टू एंड विजुअलाइजेशन मॉडल डेवलप कर सकते हैं इन Tableau. बेटा स्पेलिंग है TABLEAU.
ठीक है, टैबल्यू की आप गूगल पे करें, आपको मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि टैबल्यू आप जरूर सीखें, और बहुत ज्यादा डिमांड दुनिया में, बहुत ज्यादा। सिर्फ लोग जिनको टैबल्यू आता है उनको सिर्फ टैबल्यू को पे विजुअलाइजेशन के लिए हायर कर लेते हैं, इवन इफ यू डोंट नो अबाउट बेसिकली सो मच अबाउट डेटा साइंस। और याद रखिएगा टैबल्यू अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप सोफिस्टिकेटेड विजुअलाइजेशन मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। तो ये तो आ गई बात टैबल्यू की। अच्छा, अब मैं आपके साथ कैगल की बात कर लेता हूँ। अगर इरशाद साहब आप कैगल वाली स्लाइड शेयर कर लीजिए, आप अपना डेस्कटॉप शेयर कर, आई मीन स्लाइड शेयर कर लीजिए। कैगल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, कैगल का नाम सुना होगा। और ये समझ लीजिए कैगल इज द क्या कह सकते हैं इसका, प्राइम प्लेटफॉर्म फॉर डेटा साइंटिस्ट। याद रखिए कैगल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके डेटा साइंस की स्किल सेट को पॉलिश करने में मदद करेगा। जितना टाइम आप कैगल पर लगाएंगे उतनी ज्यादा आपकी स्किल सेट पॉलिश होगी, क्योंकि बिकॉज सवाल एक यही आता है कि सर आई वांट टू बिकम डेटा साइंटिस्ट, बट कैसे बनूं, मुझे तो अभी जॉब ही कोई नहीं देगा, तो मैं सीखूंगा कैसे? जब तक मैं सीखूंगा नहीं तो मेरी स्किल सेट पॉलिश कैसे होगी? बहुत वैलिड सवाल है जनाबे आली। तो याद रखिएगा कैगल उस प्लेटफॉर्म का नाम है, ठीक है। कैगल वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके पास मैनी कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, मैनी डेटा सेट्स अवेलेबल हैं जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर बेसिकली जो है वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो आप अपने रिजल्ट कंक्लूड कर फाइंड कर सकते हैं, और देन बेसिकली आप उसको सबमिट कर सकते हैं। तो उसके अंदर एक होता है लीडर बोर्ड। क्या होता है? लीडर बोर्ड, ठीक है। तो लीडर बोर्ड होता है, उसमें आपकी रैंकिंग भी आ रही होती है कि आपकी क्या पोजीशन है। उससे क्या होता है, एक मोटिवेशन डेवलप होती है। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट सबमिशन की, आप आगे लीडर बोर्ड में 1000 पोजीशन पे, आपने कहा मैं तो 1000 पोजीशन पे आ रहा हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कोई 2000 की पोजीशन भी मौजूद है, कोई 1500 की पोजीशन में मौजूद है, एंड सो ऑन। आपकी मोटिवेशन होगी, आप बोलेंगे कि लेट मी ट्राई सम अदर एल्गोरिथम, let me tune some hyperparameter, let me find to let me try to optimize my parameter to have a better result। और फिर आपके पास जो नए रिजल्ट आएंगे आप दोबारा सबमिट करेंगे, मे बी यू मूव फ्रॉम 1000 टू डायरेक्टली 480 पोजीशन। अब ये मोटिवेशन बिल्ड हो रही है कि आपके पास एक देखिए ना फीडबैक आ रहा है डायरेक्टली, क्योंकि याद रखिएगा आपकी जिंदगी में, आपके कैरियर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है फीडबैक का। इवन आप जब जॉब करते हैं, अगर आपको अच्छा बॉस मिल गया, आपको हेल्दी फीडबैक देगा, पॉजिटिव फीडबैक देगा। और पॉजिटिव फीडबैक का हर किसी मतलब नहीं होता है कि वो सिर्फ आपकी अच्छाइयां बयान करे, बुराइयां भी पॉजिटिव फीडबैक होती है। ऐसी जो भी फीडबैक जो को आपको इंप्रूव करने के लिए की जाए, वो एक पॉजिटिव फीडबैक है। हमें बिल्कुल उससे घबराना नहीं चाहिए कि अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है और वो गलत है या नेगेटिव है, तो वो भी पॉजिटिव है एज लॉन्ग एज वो आपके अंदर इंप्रूवमेंट ला रही है। तो कैगल आपको इमीडिएट फीडबैक देगा, उससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से आपकी लर्निंग स्किल इंप्रूव हो रही है। इसके अलावा कई एक जो है वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते हैं, और कंपटीशन के अंदर इवन पेड कंपटीशन होते हैं, यानी कि अगर आप विनर होंगे तो $20,000, $50,000, ठीक है। आप कहेंगे सर वो तो उसके लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती होगी। जी हम हर चीज के लिए एफर्ट करनी पड़ती है दुनिया के अंदर, लेकिन याद रखिए कि कोई भाई नहीं है कल आप में से कोई एक जो इस वक्त अटेंड कर रहा है सेशन, वो ऐसा कोई कंपटीशन विन कर जाए। आप कहेंगे सर दिल रखने के लिए शायद कह रहे हैं, नहीं जनाब आली, मुझे पढ़ाते हुए कोई 15 साल हो गए कम से कम, हाई आप कह सकते हैं कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर। तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत टॉप नॉच पोजीशन पे इस वक्त गए हैं, और दे आर वेरी दे आर डूइंग वेरी वेल, ठीक है। द पॉइंट इज एक्चुअली ओनली द कमिटमेंट, ओनली द राइट मोटिवेशन एंड द राइट कमिटमेंट, ठीक है। तो आप कंपटीशन, अच्छा इसके अलावा प्राइवेट कंपटीशन भी होते हैं। लास्ट ईयर जो है वो दुबई में कंपटीशन था कैगल वालों का, जो कि प्राइवेट कंपटीशन था। बहुत बड़ी जो है वो एक कॉन्फ्रेंस होती है एआई की, ठीक है। एआई
एवरीवेयर के नाम से, आई थिंक, ठीक है, नाम से आई गेस, ठीक है। तो उसमें मैं उसमें इनवाइटेड था मैं, तो मैंने कैगल में भी पार्टिसिपेट किया था। वो प्राइवेट कंपटीशन था। वो था बेसिकली अबाउट क्राइम प्रिडिक्शन। जो यूए का रीजन है बेसिकली, उसके अंदर जो है डिफरेंट जो उनके जगह है उस पर डिफरेंट टाइप के क्राइम होते हैं, और उसके क्राइम प्रिडिक्शन के बारे में था। तो दुबई पुलिस ने डेटा सेट दिया था और हमें उसको प्रिडिक्ट करना था, ठीक है। तो somehow basically competing in that competition, and again because of one mistake we were on fourth position। याद रखिएगा, तकरीबन 50 टीम्स थी और बेहतरीन दुनिया के डेटा साइंटिस्ट। आपको नहीं दुनिया के या दुबई के, मैं दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ, दुनिया के, ठीक है। पीपल फ्रॉम इवन फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूएसए, कनाडा, and even from Middle Eastern countries and other and South Asia and Asia, you call it। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ लोकल्स थे। तो कहने का मकसद है कि हमने compete किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बहुत अच्छी पोजीशन पाए। मे बी हम उससे ऊपर भी आ सकते थे, बट यू आर एक्चुअली competing in international competition। एक माइनर मिस्टेक आपको शायद सेकंड पोजीशन से थर्ड और फोर्थ पे भी मूव कर सकती है। एनीहाउ, कहने का मकसद ये है, या सिर्फ आपका मकसद जहाँ पे मेरा ये बताना नहीं है कि हम फोर्थ पे आए या सेकंड पे आए। मकसद बताना ये है कि अगर हम जा सकते हैं या हमारी टीम जा सकती है, इसका मतलब है कल आप भी कंपीट कर सकते हैं। तो अगेन, तो इस तरह की कंपटीशन आप चाहें तो पब्लिक जो कंपटीशन होते हैं वो तो आप घर बैठे कर सकते हैं कंपीट उसमें, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहें तो दुनिया में काफी कंपटीशन हो रहे होते हैं। कैगल डेज के नाम से एक पर्टिकुलर इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैगल डेज। उसमें नॉर्मली इस तरह के प्राइवेट कंपटीशन किए जाते हैं, जिसके अंदर भी काफी अच्छी हैवी प्राइज मनी भी होती है। तो ये कंपटीशन के बारे में हो गया। कैगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिफरेंट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं विच यू कैन अटेंड, थ्रू विच यू कैन लर्न। डेटा सेट मौजूद है, डिस्कशन वहां पे हो रही होती है, आप अपने सवाल पूछें, लोग इसका रिप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से एक हेल्दी इन्वायरमेंट पे आप लर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों ने अपने कर्नल्स पब्लिश किए होते हैं, आप अपने कर्नल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कर्नल अभी समझ लीजिए आप कि एक पर्टिकुलर डेटा सेट के ऊपर या एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, इस तरीके से आप भी अपना अपना सोल्यूशन देखिए। एक होता है रिजल्ट पब्लिश करना कंपटीशन के लिए, उसके मुताबिक आपके पास वो दो तरह का डेटा सेट यूज होता है। एक डेटा सेट वो आपको देता है ताकि आप अपना मॉडल बिल्ड कर सके, और एक डेटा सेट है वो आपको देता नहीं है, होता उसी के बारे में लेकिन आपको देता नहीं है, जिससे वो टेस्ट करता है आपके रिजल्ट को, वो कैसा परफॉर्म कर। तो एक्चुअली जिसमें वो टेस्ट करता है उसके मुताबिक आपकी पोजीशन जो है वो डिटरमिन होती है कि आप कहाँ लीडर बोर्ड पे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको अपना सोल्यूशन पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना अपनी आउटकम को पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो एनीहाउ, तो ये बेसिकली जो है वो ठीक है। तो ये नॉर्मली कंपटीशन में आप करते हैं। बट इफ यू वांट टू पब्लिश योर सोल्यूशन, इफ यू वांट टू शेयर योर सोल्यूशन विद अदर एक्सपर्ट, so that they can give you feedback and other can learn from your solution, तो आपने कर्नल बनाए, कर्नल पब्लिश कर लें। अच्छी बात ये कि आपको वो फ्री में आप वहां पे क्रिएट कर सकते हैं, फ्री में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अच्छी मशीन नहीं भी है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे, ठीक है। तो कर्नल का ये कॉन्सेप्ट है। तो अच्छा, एक चीज और होती है कैगल में ग्रैंड मास्टर, ठीक है। बस मैं कैगल को इसके साथ में कंक्लूड करूंगा। कैगल में एक चीज होती है ग्रैंड मास्टर, ओके। और ग्रैंड मास्टर क्या होता है, जब लोग मल्टीपल कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन में आता है तो कैगल इसको एक स्पेशल डेजिग्नेशन देता है ग्रैंड मास्टर की। और जो लोग ग्रैंड मास्टर या मास्टर होते हैं, दे आर हाईली स्किल सेट इन डेटा साइंस। तो ऑलवेज ट्राई टू अर्न एज मेनी पॉइंट एज पॉसिबल एंड ट्राई टू बिकम अ मास्टर और ग्रैंड मास्टर। एक दफा आप ग्रैंड मास्टर के लेवल पे आ गए तो यू विल बी ट्रीटिंग लाइक ए गॉड ऑफ डेटा साइंटिस्ट, और यू कैन से सॉरी गॉड ऑफ डेटा साइंस। तो मैं गॉड से मुराद अगेन यहाँ पे एक लफ्जी मकसद है, इसको हम दूसरे मीनिंग में नहीं ले रहे, मतलब यू नो सॉर्ट ऑफ गॉड फादर, ओके। तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नो अबाउट कैगल। इसके अलावा आपके पास एमएल रिपोजिटरी मौजूद है, एमएल रिपोजिटरी कर लें। इसके अलावा गूगल का डेटा सर्च इंजन मौजूद है जहां से आप डेटा सेट ले सकते हैं।
तो आपके पास प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप अपनी स्किल सेट को पॉलिश कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट Kaggle. मैंने आपको टूल्स के बारे में बता दिया. अच्छा, मैं अच्छा, लर्निंग के लिए लोगों ने पूछा सीखे कैसे. देखें, पहली बात ये है कि दे आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन इंटरनेट. आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डेटा कैंप. आप चाहे तो डेटा कैंप की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. आई थिंक पर ईयर कुछ $150 और कभी डिस्काउंट आया हुआ होता है तो $100 समथिंग लाइक दैट मौजूद है. कोर्सेरा पे कोर्स ले सकते हैं आप, फ्री में भी ले सकते हैं और सर्टिफिकेट बेस भी जा सकते हैं आप. एडेक्स पे जा सकते हैं आप, ठीक है ना. इसके अलावा ऑनलाइन जो है वो कुछ बूट कैंप्स हो रहे होते हैं, उसको अटेंड कर सकते हैं. इसके अलावा जो है वो डिफरेंट फोरम्स हैं, डिस्कशन फोरम्स हैं जिसके थ्रू लर्न कर सकते हैं. बट ये तमाम प्लेटफॉर्म जो है वो आपको जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश मिलेगा. बट यूजुअली हम ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं विद यू नो मिक्स उर्दू इंग्लिश. तो माइट बी देयर आर मैनी local institute which are actually offering these type of courses. वो आप अटेंड कर सकते हैं. और यहाँ पे हम बताते चलें कि हमने भी कुछ एक क्या नाम है एक कंप्लीट आउटलाइन डिजाइन की है जो आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह. और जो कि एक पाथ है, जो उस पाथ को दो तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं. या तो आप सेल्फ लर्निंग करें या वी आर ऑल्सो प्लानिंग. ठीक है, वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर लर्निंग पाथ through virtual environment or maybe using our physical classes. So we are thinking about it. We are not decided yet that we are really going to offer this type of courses ourselves or not, because it actually depends on basically who is actually interested and why someone is interested in our offering. ठीक है, तो हम इसके बारे में सोचेंगे, आपसे भी फीडबैक लेंगे. But again, our point is not about learning from our courses, but we are encouraging you to basically join any of the courses offered on the internet. जैसे कि अभी इन स्लाइड में भी मौजूद है. अगर इसार साहब थोड़ा सा आगे करें, आप इसार साहब आगे कीजिएगा स्लाइड. सॉरी, जहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ ना प्लेटफॉर्म्स के बारे में, वो थोड़ा सा व्यू करा दें इनको, स्टूडेंट्स को. हाँ जी 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 जी, जो आपने पीछे है ना कोर्सेज वगैरह जो थे. जी जी, अब देखें, एजोर साइंटिस्ट की एक सर्टिफिकेशन है, SaaS का प्लेटफॉर्म मौजूद है, IBM डेटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कर सकते हैं. आगे मूव करें. 3 मंथ का कोर्स है और ये एक बिगनर लेवल का कोर्स है. आगे चलिए, नेक्स्ट स्लाइड मूव करें. जी, इसके अलावा Tableau के प्लेटफॉर्म पर जाके आप लर्निंग कर सकते हैं. ये और आगे चलें सर. हार्वर्ड के भी कोर्सेज हैं इसके अलावा डेटा साइंस की, आप वो अटेंड कर सकते हैं. ये एडेक्स प्लेटफॉर्म पे, आपने सुना होगा, एडेक्स का नाम तो सुना होगा. एडेक्स के प्लेटफॉर्म पे आप अटेंड कर सकते हैं. इसके अलावा आगे चलें सर. अच्छा, इसमें कॉस्ट भी दी हुई है बाय द वे. आप कॉस्ट यकीन याद रखिएगा, अगर आपने सर्टिफिकेट अवेल करना है तो यू कैन सब्सक्राइब, और अगर आपने फुल फ्लेज यूज करना है, अदरवाइज लिमिटेड फीचर विदाउट सर्टिफिकेट फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. सर आगे चलिए. SaaS ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया. आगे चलिए. तो एनी हाउ, तो दीज आर बेसिकली प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप जाके सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, इधर फ्री ऑफ कॉस्ट विथ लिमिटेड फीचर्स. क्योंकि असेसमेंट वगैरह यूजुअली आप पेड में अवेलेबल होती है. अगर आप पेड नहीं अवेल करेंगे तो असेसमेंट अवेलेबल नहीं होगी. ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, इनमें से कोई भी कोर्स जो है वो एंड टू एंड कंप्लीट पाथ प्रोवाइड नहीं कर रहा है. ठीक है, तो अगर आपने एज ए कैरियर परसू करना है तो हमने भी एक लर्निंग पाथ डिजाइन किया है, वो आप किसी तरीके से आप कर सकते हैं. अच्छा, किसी ने बेसिकली यूडेमी का भी कोई पूछ रहा है. अच्छा, मैं जरा चैट भी सामने खोल लेता हूँ ताकि लोगों के सवाल मेरे सामने रहें. अच्छा, तो यूडेमी भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट यूडेमी में के अंदर कोई एक क्वालिटी चेक के नाम की कोई चीज नहीं है. ठीक है, मैंने काफी यूडेमी की कोर्सेज को इवेलुएट भी किया है और मैं सब्सक्राइब भी किया. टू बी ऑनेस्ट, मैं तमाम प्लेटफॉर्म को यूज करता हूँ, चाहे वो कोर्सेरा हो पेड भी, डेटा कैंप हो,
एडेक्स हो या इवन जो है वो यूडेमी हो, बट यूडेमी में थोड़ा सा जो है ना क्वालिटी का एक फैक्टर बड़ा अहम है, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी चेक नहीं होती है। आप भी और मैं भी चाहें कोई भी कोर्स पब्लिश कर सकता है, और एज सच कोई क्वालिटी का चेक नहीं है वहाँ पे। बट अगेन अगर आपको अच्छा कोर्स मिल जाता है तो यस यू कैन गो फॉर द यूडेमी एज वेल, बिकॉज यूडेमी इज क्वाइट चीप। अक्सर बेशतर डिस्काउंट चल रहा होता है, तो आपको एक कोर्स इवन 10 से 15 डॉलर में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यूडेमी में भी जा सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। और आगे चलें, आगे चलते हम, बिल्कुल आगे स्लाइड मूव कर लें। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं स्किल सेट के बारे में बात कर चुका हूँ। देखें यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्किल्स, स्टैट्स, मशीन लर्निंग, डेटा रैंगलिंग, यानी कि डेटा रैंगलिंग का मतलब ये कि डेटा की मैनिपुलेशन, ठीक है, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा की क्लींजिंग, एक वर्ड यूज करते हैं डेटा मसाजिंग। ठीक है, डेटा मसाजिंग से बात कर रहे थे, जैसे हम कहते हैं ना हमें बॉडी में पेन होता है, हम कहते हैं यार मसाज करवा लो, पेन जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो देयर आर स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल लाइक मे बी, ठीक है, दे कैन बेसिकली रिलीव यू फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ पेन, हेडेक और सम टाइप ऑफ पेन, बॉडी पेन फॉर एग्जांपल, राइट। इसी तरीके से अब डेटा का जो पेन क्या है, डेटा के अंदर जो डर्ट है, डेटा के अंदर जो इम्प्यूरिफिकेशन है, वो कैसे रिमूव करेंगे? बाय यूजिंग डेटा रैंगलिंग। ठीक है, अच्छा, कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा यकीनन, अच्छा यहाँ पे याद रखिएगा, आपको किसी भी चीज का एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है कि आप बैठ जाएं बेसिकली आप कहेंगे सर कैलकुलस का मुझे एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं, नो हाउ होना जरूरी है। ठीक है, आप बगैर डिटेल नॉलेज के भी डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, बट अगर इफ यू वांट टू गो फॉर द नेक्स्ट लेवल जहाँ पे आपने इसको मॉडिफाई भी करना है, देन यू कैन गो, तो बेटर, इट्स बेटर फॉर यू टू लर्न मल्टीवेरिएट कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। याद रखिएगा, कहते हैं ना मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस और मैथमेटिक्स फॉर एमएल, तो इट्स नॉट अबाउट द होल मैथमेटिक्स, इट्स जस्ट अबाउट द स्पेसिफिक मैथमेटिक्स which we usually use like matrix manipulation or matrix handling specifically in data science। तो आप उन चीजों को फोकस करेंगे, ये नहीं कि तमाम चीजों को उस पर कवर किया जाए, राइट। एनीहाउ, चलें अब आपके सवालात। अच्छा, किसी ने पूछा है कि पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, पाकिस्तान की मार्केट सॉरी टू से थोड़ा पीछे चलती है, हो सकता है आप में से बहुत से लोग एग्री ना करें, लेकिन थोड़ा पीछे चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप करंट टाइम में देखें स्पेसिफिकली लास्ट 2 इयर्स के अंदर, तो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना शुरू हो गई हैं। टेलको सेक्टर हमारे, यानी कि टेलीकॉम सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, इवन एकेडमिया आर लुकिंग टू हायर डेटा साइंटिस्ट। सॉफ्टवेयर हाउसेस के पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसके अंदर एक कंपोनेंट डेटा साइंस का भी है। तो these days there are many opportunities are actually creating in our local market, but यहाँ पे आप restricted नहीं है। There are many freelancing opportunities are available on various platforms, okay, जहां पे आप अपनी डेटा साइंस की सर्विस दे के आप महीने के अंदर आप $1000, मैं देखिए मैं एक्सैजरेट करने का आदी नहीं हूं कि मैं आपसे कहूंगा पहले महीने में आप $20,000 कमाएंगे, नहीं जनाब अली, मैं फेक जो है लोग स्टूडेंट्स को मोटिवेशन नहीं देता हूं, लेकिन मैं इतना ये बात जरूर श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप एक बेसिक लेवल पे भी आपकी डेटा साइंस की स्किल सेट डेवलप हो जाती है तो आप इजिली $1000, थाउजेंड ही कह रहा मैं, $1000 to $2000 कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसके अलावा आपके पास आउटसोर्सिंग अवेलेबल है। इसके अलावा आप चाहें तो यूरोप में, अमेरिका में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और आप जॉब्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी, आपको मैंने बेटा अभी बताया था टैब्लू के बारे में कि टैब्लू इज अ डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। ये तो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, वेरी पावरफुल विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि आप इसके ड्रैग एंड ड्रॉप से बहुत सोफिस्टिकेटेड बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज रह गई, अगर आप टैब्लू यूज नहीं करना चाहते, टैब्लू एक्सपेंसिव भी है, बट यू आर कंफर्टेबल विद माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म, तो आपने नाम सुना होगा पावर बीआई का। ठीक है, पावर बीआई का, तो आप पावर बीआई बहुत अच्छा टूल है, सोफिस्टिकेटेड टूल है, माइक्रोसॉफ्ट के तमाम अदर टूल्स के साथ वो इंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि डेटा बेसिस के साथ बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। इवन आप शेयर पॉइंट से डेटा उठा सकते हैं, अगर आपने शेयर पॉइंट का नाम सुना हुआ है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि पावर बीआई फॉर डेस्कटॉप का जो टूल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। खेलें जितना बनाना है आपने, उसके अंदर मॉडल्स बनाएं, डेटा मॉडल क्रिएट करें, डेटा पॉपुलेट करें, एंड टू एंड विजुअलाइजेशन करें। जबरदस्त टूल है पावर बीआई।
हाँ, जब आप इसको क्लाउड पे पब्लिश करेंगे ताकि जो आपके मैनेजमेंट है या आपके जो यूजर हैं वो आपके सोल्यूशन को एक्सेस कर सकें, आपकी विजुअलाइजेशन को देख सकें, आपकी इंसाइट को रेफर कर सकें, तो फिर आपको क्लाउड पे पब्लिश करना पड़ेगा। और पावर बीआई का जो क्लाउड पे जाने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, यूजुअली पर मंथ $7 to $10 होती है, तो डिपेंडिंग ऑन कितने कस्टमर चाहिए उसके हिसाब से यूज कर लें। अच्छा भाई, व्हाट यू प्रेफर, पावर बीआई और टैबल्यू, एक सवाल है ये। देखिए, नो डाउट टैबल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, बहुत ज़्यादा डिमांड है टैबल्यू की। पावर बीआई जो है वो अभी स्टिल इमर्जिंग फेज के अंदर है, लोग इसके पोटेंशियल को रियलाइज कर रहे हैं, एंड मैनी पीपल आर नाउ स्टार्ट यूजिंग पावर बीआई। बट याद रखिएगा, पावर बीआई अगर आप मुझसे पूछेंगे तो क्योंकि मुझे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पावर बीआई लगता है, तो मैं शायद कहूँगा कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल टू मीडियम साइज है और आपका काम पावर बीआई से बन सकता है तो आप पावर बीआई पे चले जाइए। टैबल्यू इज मोर एक्सपेंसिव। एनी अदर क्वेश्चन? So, Dr. Isar Saab, any other point which we are missing in today's presentation? तो आप इसको, अच्छा जी, ये हमारा अगर आप ये देखें तो हम जो समझते हैं कि एक डेटा साइंटिस्ट को क्या ट्रैक फॉलो करना चाहिए, तो डेफिनेटली डेटा साइंस की अंडरस्टैंडिंग, प्री प्रोसेसिंग, एनालिसिस, एनालिटिक्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, MySQL एटलीस्ट। अब यहाँ पे MySQL एक्चुअली मकसद नहीं है, यहाँ मकसद ये है कि आपको डेटाबेस ही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे होने चाहिए। यहाँ मैं थोड़ा सा और इसको ब्रॉड कर दूँ, you must be familiar with relational database as well as NoSQL databases, because it is not always necessary to have your data in relational and pure structure data sources. So you might have basically क्या नाम है, structured, or you might have basically semi structured data. और आजकल तो आपको पता है कि डेटा जो है वो हम वी लव टू स्टोर, वी लव टू एक्सचेंज डेटा इन जेसन। ठीक है, जेसन से क्या मराद है, आप जेसॉन भी कहते हैं, आप जेसन कह लें, जेसॉन कह लें, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो लाइक मोंगो डीबी, ठीक है, तो याद रखिएगा आप बहुत सारे टूल्स हैं, you don't need to be become expert of all these tools, but you must need to be familiar with all these tools gradually. I'm not saying start with everything, but I will only suggest you to start with one or two tool and then gradually try to learn as many tools as possible. Okay, with again at least become an expert of one of the tool. But yaad rakhiyega, data is very important, and storing data efficiently and retrieving data efficiently is very important, and that is why you need to learn about at least one relational database and one non-relational database, or you can call it NoSQL database. NoSQL का मतलब क्या है, not only SQL, ठीक है, तो like MongoDB हो गया, like Cassandra हो गया, ठीक है, and like many other cloud based databases available हैं, like आपको पता है कि Amazon अपनी databases कुछ दे रहा है, Azure दे रहा है for example, ठीक है, so yeah, okay. तो मशीन लर्निंग की, अच्छा मशीन लर्निंग की आपको एल्गोरिथम्स की समझ हो, बहुत अच्छी बात है, उसमें चाहे वो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम हो गया, चाहे वो अनसुपरवाइज लर्निंग हो गया, चाहे रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया, somehow or to some extent reinforcement is relatively a new concept, relatively I am saying, at least people, not many people know about reinforcement learning, but mind it, reinforcement learning is a very 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 powerful technique. As a data scientist you must need to familiar with reinforcement. याद रखिएगा, इन तमाम चीज को यूज करने के लिए आपको एल्गोरिथम खुद लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे आप R यूज करें, चाहे आप पाइथन यूज करें, चाहे आप SAS यूज करें, चाहे आप मैटलैब यूज करें, चाहे आप रैपिड माइनर यूज करें, इन ऑल दीज केसेस, ठीक है, इन ऑल दीज केसेस you just need to use built-in libraries, built-in APIs provided by these languages and these tools. You just need to
use it efficiently. You just need to tune it efficiently by passing appropriate parameters to these algorithms. Okay, so you don't need to learn the derivation of stochastic gradient descent algorithm. You don't need to learn. You don't need to learn basically, uh, for example, multivariate calculus to how to calculate derivative, or you can say how to calculate partial derivative using maybe a chain rule. If you are going to become a machine learning expert, then I will refer to be as much as strong as possible in mathematics, specifically in linear algebra and multivariate calculus. But as a data scientist, you need to have a familiarity with these concepts rather than becoming a expert of these things, or expert of mathematics, or expert of linear algebra. Okay, so again again in language यहाँ पे हमने Python लिखा हुआ है, but again I will suggest you to treat it as a Python slash R. Okay, can you move on to next slide? Okay, so any other question? Okay, let me go for a poll. आपके साथ में मैं poll share कर रहा हूं, आप इसका आंसर करिए. आपके स्क्रीन पे poll आ रहा होगा. I love to see what your feedback is. Okay, let me end and share the result. Okay, so 96% of the attendees are actually interested in pursuing career as a data scientist. However, 4%, which is actually only one person, is actually not interested in pursuing career as a data scientist. अच्छा, जिन लोग interested हैं, it's a good news for us as well that at least you are motivated toward data scientist, and once you will become a data scientist, then then we might count ourselves as maybe one of the motivator towards towards your career as a data scientist. तो हम कह सकेंगे भाई शायद हमारी भी कुछ contribution है आपको motivate करने की तरफ. अच्छा, अब किसी एक साहब ने शायद कहा है कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. अगेन जितने लोगों ने इस पॉल में हिस्सा लिया, सबने नहीं लिया, जितने लोगों ने हिस्सा लिया फॉर एग्जांपल, राइट. तो याद रखिएगा, even if you don't want to pursue your career in data science, I will again suggest you to have an understanding about data science, because it really helps you. It really become an add-on in your profile, because it will really help you to understand when some data scientists will be presenting some recommendation in front of you, then you have an edge. Why you have an edge? Because you have an understanding about what actually data science and what they are trying to recommend you, or what they are trying to suggest you. So again, I'm really happy to see that most of you are actually very much interested in to become a data scientist or pursuing your career as a data scientist. Okay, thank you. Okay, anything else? If you have any other question, we'll love to know about it. अच्छा, आप लोग हम एक email करेंगे, maybe एक survey. तो whenever you will find time, kindly try to give your feedback. Okay, so that we can improve future webinar. We might need to ask you about what should be the topic of next session or next webinar, because today's webinar is only about the introduction of data science
with job opportunities and with the basic know-how about the tools relevant to data science domain. But in future, we will try to discuss different techniques, different algorithms, and we will try to collectively solve a real-world problem as well. Okay, so for that we need to have uh, um, um, feedback from your side. Okay. अच्छा, कैन आई गेट योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन? याद रखिएगा, जिस ईमेल से आपके पास इनविटेशन आई होगी इस वेबिनार की, आप उस पर मेल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पाकिस्तान का जो फेसबुक पेज है, आप उसके ऊपर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। एंड मी एंड Isar sir will try our best to answer your question as early as possible. ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि काफी दिन से हमने प्लान चेकआउट किया कि हमने कहा कि भाई के why not we should utilize our skill set to groom our people to become data scientists. याद रखिएगा, हम काफी पीछे हैं, हम काफी पीछे हैं. I'm not talking about you guys only. I'm talking about the nation. We need to really develop our skill set. We need to really improve our skill set to compete in the international market. तो क्या आपको पता होगा, मैं इस डिटेल में जाना नहीं चाह रहा फिलहाल इस वेबिनार के अंदर. There are many negative impact of data science as well. There are many exploitation. You might heard about the last election of USA, जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प जो है विन किया था. ठीक है, तो we need to basically develop a healthy society. That is why I'm saying that even if you don't want to pursue your career as a data scientist, you'll need to learn about ethics, social responsibilities as a data scientist. Okay, so we will probably discuss, we will probably cover all these things in the future webinars. But for today, I would just like to thank you everyone for attending today's webinar. और आप लोग, तमाम लोगों को जिन लोगों ने अटेंड किया था, उनको हम इंशाल्लाह विद इन अ वीक एक ई सर्टिफिकेट आपको इंशाल्लाह ईमेल कर देंगे. अगर आप में से कोई हार्ड कॉपी चाहेगा तो वो भी अरेंज हो सकती है, बट देन फॉर दैट वी विल कॉन्टैक्ट यू बिकॉज हाउ टू डिस्पैच. ओके, प्रॉब्ली हम आप में से जिन लोगों ने आज की वेबिनार अटेंड किया है, उनको हम अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप की जो टी शर्ट है, कुछ इसमें से 2 लोगों को हम जो रैंडमली सिलेक्ट करेंगे इसमें से, उनको हम इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको वो डिस्पैच करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, एज ए टोकन ऑफ मोटिवेशन. ठीक है, और इंशाल्लाह जैसे जैसे हालात सही होते हैं, बेहतर होते हैं, तो इंशाल्लाह हम फिजिकल मीटअप भी प्लान करेंगे, जिसके अंदर हम हैंड्स ऑन आपको प्रॉब्लम एक सॉल्व कराएं और फिर फेस टू फेस हम डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें और कैरियर काउंसलिंग भी कर सकें. एंड याद रखिएगा, ये चीज़ सिर्फ मेरे और इसार साहब की हद तक महदूद नहीं रहेगी. अल्हम्दुलिल्लाह we have a very strong panel from all across the globe. जी हाँ, we have a strong collaboration with many international universities and international AI labs as well. So we will invite all of them gradually to give presentation, to provide counseling to through our platform, ताकि आपके पास ना सिर्फ हमारी बल्कि आपको इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की भी नॉलेज को शेयर किया जा सके. ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हमारे फ्यूचर प्लान का हिस्सा है कि हम जो है अगर हमने हमारा ये गोल है कि हमने 1 साल के अंदर अगर 50 डेटा साइंटिस्ट भी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर दी तो हमारा गोल अचीव हो जाएगा. और हम ये समझेंगे कि अगर हमारे पास कुछ नॉलेज है तो हमने वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, एक सोशल कॉज के तहत हमने वो अपना रोल प्ले कर दिया गया. तो ये इंशाल्लाह हमारी मोटिवेशन है, एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कंट्रीब्यूट
using our best of knowledge and our best skill set. Thank you very much from my side. I will request Israr Saab to conclude today's webinar. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बस यहाँ पर हम एंड करते हैं। अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन है और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो फील फ्री टू कांटेक्ट। आपको कांटेक्ट की इंफॉर्मेशन सर दे चुके हैं। इसके अलावा जो वेबिनार का ऐड था उस पर एक फ़ोन नंबर भी मौजूद था, अगर आप चाहें तो उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं।